عروج اور اس کا گینگ ان کے مطابق خلیل الرحمان قمر کو انہوں نے ٹریپ ایسے کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم انگلینڈ سے آئے ہیں اور ایک پروڈکشن کمپنی آپ کے ساتھ مل کے بنانا چاہ رہے ہیں۔ کڈنیپرز نے فیمس ڈرامہ ایکٹریس صبا قمر، فیمس ڈرامہ ایکٹر نعمان اعجاز کا بھی نام لیا تھا۔ Who do we pay to keep him kidnapped؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کس کو پیسے دینے پڑیں گے اور کہ اس شخص کو کڈنیپ کرے رکھو۔ خلیل صاحب کے مطابق 5 سے 6 لوگ نیچے موجود ہوتے ہیں، ڈور ناک کر کے اندر جاتے ہیں اور ابھی بیٹھے ہی نہیں ہوتے کہ ان کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے۔ اقرا زیب محترمہ کہہ رہی ہیں I am with kidnappers۔ زبردست، یہ پولیس والوں کا کام آسان ہو گیا ہے، جو ایک کڈنیپر رہتی تھی وہ اس نے خود بتا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کڈنیپرز نے کہ یہ تو ہمارے ٹریپ میں نہیں آ رہے، نہ ہماری بات مان رہے ہیں، نہ ہمیں وہ رینسم اماؤنٹ دے رہے ہیں، نہ انہیں موت کا ڈر ہے، وہ کہتے تھے ہم تمہیں گولی مار دیں گے، وہ کہتے مار دو۔ انہوں نے بلٹ فائر بھی کیے۔ نشا عورت کے ساتھ فزیکل انوالو تھا۔ نشا ویڈیو تو مجھے سینڈ کر دیں اس کی، میں بھی دیکھوں۔ اس ویلاگ میں آپ کو میں آج بتاؤں گا کہ اصل حقائق ہیں کیا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ 99% یہی چل رہا ہے کہ خلیل الرحمان قمر از رانگ، ہی از گلٹی، وہ غلط ہے، اس نے غلط کیا، اور جو بھی ہے مطلب اس کے خلاف فل نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ خلیل الرحمان قمر پچھلے 10 سے 15 دن سے اس عروج نامی خاتون سے رابطے میں تھے۔ عروج اور اس کا گینگ ان کے مطابق خلیل الرحمان قمر کو انہوں نے ٹریپ ایسے کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم انگلینڈ سے آئے ہیں اور ایک پروڈکشن کمپنی آپ کے ساتھ مل کے بنانا چاہ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ لڑکی ان کے ساتھ رابطے میں تھی، انہوں نے ہنی ٹریپ کیا۔ ہنی ٹریپ کو لے کے خلیل الرحمان قمر کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان غلط ہے جو ہنی ٹریپ کے اندر آ گیا۔ ہنی ٹریپ کے اندر آپ موسٹلی فیمیلز کو یوز کرتے ہیں۔ ہنی ٹریپ نام سے ہی ظاہر ہے، آپ بڑے پیار سے اور بڑی میٹھی میٹھی باتوں سے آپ اس شخص کو گریب کرتے ہیں، اس کی اٹینشن کو گریب کرتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ ضروری نہیں کہ ہنی ٹریپ سیکسولی یا کسی غلط طریقے سے ہی کیا جائے، آپ اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کے بھی کسی کو ہنی ٹریپ کر سکتے ہیں۔ ان دا مین وائل جو کہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ خلیل الرحمان قمر نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، ایسا نہیں ہے۔ ان کے آڈیو میسیجز موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کے، اور ان میسیجز میں، ان آڈیو نوٹس میں ملنے کی کسی بھی قسم کی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا۔ 10-15 دن کی چیٹ اور رابطے کے بعد خلیل الرحمان قمر صاحب فیصلہ کرتے ہیں ان سے ملنے کا، اور صبح 4:30 بجے وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی وہ ان کی پلیس پہ پہنچتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر، جو کہ بڑی ایک سیکیورڈ سوسائٹی ہے، وہاں پہ پہنچتے ساتھ ہی وہ بھی ڈور ناک کرتے ہیں، ڈور ناک کر کے اندر جاتے ہیں اور ابھی بیٹھے ہی نہیں ہوتے کہ ان کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ کچھ 6 سے 7 لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی ان کے مطابق، خلیل صاحب کے مطابق 5 سے 6 لوگ نیچے موجود ہوتے ہیں۔ خیر ان کو ٹریپ کر کے 1.5 سے پونے 2 گھنٹے وہیں پہ ان کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں رینسم اماؤنٹ کی، 1 کروڑ روپیہ دیں اور آپ کو مارنے کے آرڈرز ہیں، پیچھے سے آرڈرز ہیں، کس کے آرڈرز ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اصل کہانی ہے کیا، کہانی کا اینگل کیا ہے، کہانی کی پیس کیا ہے، کیونکہ جو کہانی کا جو اینگل ہے نا، وہ اینگل سوشل میڈیا پہ بتایا ہی نہیں جا رہا۔ اینگل کو نیگیٹو وے میں دکھایا جا رہا ہے صرف ویوز اور سبسکرائبر کے لیے۔ اس 1.5-2 گھنٹے کی بحث کے بعد وہ لوگ خلیل الرحمان قمر صاحب کو گاڑی میں ڈالتے ہیں اور ایک ان نون پلیس پہ لے جاتے ہیں، تقریباً کوئی 70-80 کلومیٹر دور لاہور سے، شاید کوئی ننکانہ صاحب کے قریب کوئی علاقہ ہے، وہاں پہ لے جا کے ان کو گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کڈنیپرز نے جو بھی تھے کہ یہ تو ہمارے ٹریپ میں نہیں آ رہے، نہ ہماری بات مان رہے ہیں، نہ ہمیں وہ رینسم اماؤنٹ دے رہے ہیں، نہ انہیں موت کا ڈر ہے، وہ کہتے تھے ہم تمہیں گولی مار دیں گے، وہ کہتے مار دو۔ تو انہوں نے پھر پلان بی ایکٹیویٹ کیا کہ ان کو ہم ایک فلاں پلیس پہ لے جا کے وہاں پہ ان کو تھریٹ کریں گے، شاید یہ ڈر جائیں۔ وہاں پہ بھی ان کا کام نہیں بنا، ایون کہ انہوں نے بلٹ فائر بھی کیے ان کے تھوڑا سا کچھ 6-7 انچ ٹانگ سے دور، لیکن پھر بھی کام نہیں بنا۔ ان دا اینڈ یہی ہوا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہاں پہ ہماری دال نہیں گلنے والی۔ انہوں نے ان کو وہیں پہ چھوڑا اور ان کی گاڑی کی چابیاں دی، کچھ پیسے دیے انہیں کہ یہ لیں آپ کی گاڑی، یہ آپ کے کچھ پیسے، آپ واپسی پہ یہاں سے اپنے گھر جائیں، وی آر لیونگ یو۔ خلیل صاحب وہاں سے 2000 روپے کا پیٹرول ڈلاتے ہیں اور اپنی گاڑی کو گھر کی طرف لے جاتے ہیں اور گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ساری سٹوری تھی جو آپ سب کو پتا ہے۔ اچھا مزے کی بات ایک اور چیز، خلیل الرحمان قمر صاحب نے شاید بات کی کہ میرے پاس تو 10 لاکھ دے سکتا ہوں یا کہ نہیں دے سکتا، شاید ایسی کچھ 10 لاکھ کی انہوں نے بات کی تھی، وہ بھی ان کا انٹرویو موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ تو ہمارا آپ کی ریکی پہ لگ گیا اور 1 سال سے ہم آپ کی ریکی کر رہے ہیں، تو 10 لاکھ پہ ہمارا کیا ہوگا؟
इट मीन्स कि वो 1 साल से उनकी रेकी कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे लग गए हैं। तो क्या उन्होंने 1 साल रेकी पे सिर्फ इसीलिए ज़ाया किए कि उनको 1.5-2 घंटे पकड़ें? मेरा ख्याल है कि कोई भी समझदार इंसान इस कहानी को समझ गया होगा कि अगर उन्होंने किडनैप भी करना होता फॉर सम रैंसम अमाउंट 1 करोड़ रुपए के लिए, तो उन्होंने छोड़ा क्यों फिर? ये सवाल पैदा होता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इस स्टोरी के अंदर ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक पॉडकास्ट में बताया कि वहाँ पे कुछ किडनैपर्स ने फेमस ड्रामा एक्ट्रेस सबा कमर, फेमस ड्रामा एक्टर नुमान एजाज का भी नाम लिया था और उन्होंने कहा मैंने FIR करवाने से इसीलिए मना कर दिया था कि कुछ शोबिस के लोगों का उन लोगों ने नाम लिया था। अब सबा कमर का या नुमान एजाज का इस किडनैपिंग से क्या ताल्लुक है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सबा कमर को खलीलुर रहमान कमर साहब अच्छा नहीं समझते थे, नुमान एजाज से उनके इख्तलाफात भी थे। तो ये भी एक एंगल है स्टोरी का। क्योंकि सोशल मीडिया पे इस स्टोरी को नेगेटिव एंगल ये दिया जा रहा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब रात को ही क्यों गए, रातों को ही क्यों मिलते हैं, उसके जब वो लड़कियों को इतना बुरा भला कहते हैं तो फिर लड़की के पास ही क्यों गए। इसी एंगल में ही आपके इन सवालात का जवाब है कि खलीलुर रहमान कमर साहब लड़कियों को गलत नहीं कहते, वो एक स्पेसिफिक तबका है जिनसे उनका इख्तलाफ है, जो कि फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की हैं। उन लड़कियों से उनका इख्तलाफ है जो कि थोड़ी बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, थोड़े से हमारे इस्लामिक कल्चर से हट के थोड़ा चलती हैं, उन लड़कियों से उनका इख्तलाफ है। उनका औरत जात से इख्तलाफ नहीं है, एक खास तबका है जो कि उन्होंने भी बताया। तो अगर उनका औरत जात से इख्तलाफ होता तो वो 4 बजे एक औरत जात के कहने पर ही उसके पास क्यों जाता? क्या उसे नहीं पता था कि मैं औरतों के खिलाफ इतना बोलता हूँ तो मैं ये जाऊँगा तो शायद मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए? इट मीन्स के ही वॉज राइट, उसके माइंड में कुछ ऐसा नहीं था। और सेकंड थिंग जो कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उनको जी डॉक्टर ने धूप में आने से मना किया। अरे भाई, जिस बीमारी का उन्होंने नाम लिया है ना, एक बार आप उस बीमारी को गूगल कर लिया करें मेरे भाई। गूगल है, गूगल फ्री है, उस पर पैसे नहीं लगते। डर्माटोमायोसाइटिस क्या है ये पता है आपको? डर्माटोमायोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है, स्किन की बीमारी है, स्किन एलर्जी है, जो कि धूप में निकलने से, किसी भी किस्म की हीट से आपकी स्किन को डैमेज करती है। और स्किन का कोई स्पेसिफिक हिस्सा नहीं, आपकी होल स्किन को डैमेज कर देती है। रैशेस हो जाते हैं, आपको इचिंग होती है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और उनकी वो रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, उन रिपोर्ट्स में मेंशन है, उनकी बायोप्सी हुई है, उसमें सारा कुछ मेंशन है। तो ये उस बात का जवाब है। मैं कोई यहाँ पे किसी की साइड लेने नहीं आया, या मतलब मेरा कोई खलीलुर रहमान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, या मेरी कोई लड़कियों से दुश्मनी नहीं। मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। तो हकीकत जिनके खिलाफ होगी ना, तो वो तो हमारे खिलाफ बोलेंगे। मेरा और मेरे इस इदारे का मकसद है कि सच और हक को सामने लेके आना, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। वो इस बीमारी का शिकार है, एक स्किन एलर्जी है। वैसे खलीलुर रहमान साहब, वो एलर्जी सिर्फ धूप से नहीं, सिगरेट पीने से भी होती है। आप सिगरेट भी छोड़ दें। तो खैर, सोशल मीडिया पे इस चीज़ को एक गलत एंगल दिया जा रहा है कि खलीलुर रहमान एक अय्याश इंसान है, वो 4 बजे ही जाके क्यों मिलता है, रातों को ही क्यों मिलता है, दिन को क्यों नहीं मिलता। तो भाई, मेरा भी शोबिस से ताल्लुक़ है, मैं भी शोबिस में रहा हूँ। हम भी जितनी रिकॉर्डिंग्स, जितनी एडिटिंग, जितनी मीटिंग्स करते हैं ना, हम लेट नाइट ही करते हैं, हम दिन में नहीं करते। तो ये कोई जवाब नहीं है कि आप रात को 4 बजे क्यों गए या आपको 3 बजे क्यों गए। उनकी भाई हिस्ट्री तो देख लो, वो जितनी भी मीटिंग्स करते हैं इसी टाइम पे होती हैं। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे जो यंग लड़के और यंग लड़कियां, उनके अंदर कितनी नेगेटिव थिंकिंग भर दी गई है सोशल मीडिया के थ्रू। किस लिए? सिर्फ नेगेटिव बातों को फैलाने से। हमारा मिशन यही है कि हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से काउंटर करें। इतनी नेगेटिविटी फैला दी गई है कि आप, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, मैं खुद इसी जनरेशन का ही हूँ, हमारी जो यंग जनरेशन है उसके दिमाग में किस कदर शिद्दत पसंदी, किस कदर नेगेटिविटी और किस कदर गंद भर दिया गया है। ये आप ये ज़रा ट्वीट्स पढ़ें। मैं आपको ट्वीट सुनाता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर के किडनैप पे लड़कों और लड़कियों ने क्या ट्वीट्स किए। पहला ट्वीट, इनका नाम है लूना टू लव गुड, काइंडा डिसअपॉइंटेड, जिंदा छोड़ दिया बट स्टिल सेटिस्फाइड, वेल डन, सलूट है आपको। माहा शाहिद, सॉरी बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील गुड अबाउट समवन बीइंग किडनैप्ड, वेल डन। यहाँ से आप देख रहे हैं थिंकिंग, जो मैंने बात की, नेगेटिविटी कितनी भर दी है। ईशा राई, वाई आई एम हैप्पी, कह रही है कि मैं क्यों खुश हूँ, मुझे खुशी क्यों हो रही है। ये लड़का है कोई। SM आरिफ, ब्यूटीफुल न्यूज, हु डू वी पे टू कीप हिम किडनैप, ये कह रहा है कि हमें किसको पैसे देने पड़ेंगे और कि इस शख्स को किडनैप करे रखो। अरे भाई, इकरा ज़ेब मोहतरमा कह रही हैं आई एम विद किडनैपर्स, जबरदस्त। ये पुलिस वालों का काम आसान हो गया है, जो एक किडनैपर रहती थी वो उसने खुद बता दिया। जैन रोशान, ओनली गुड न्यूज इन लास्ट मंथ,
हो। सितवत्रा सोल, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। विश दे वुड हैव केप्ट हिम, ख्वाहिश करता हूँ या करती हूँ कि ये उसको पकड़े रखते। आप यहाँ से इनकी मेंटेलिटी का अंदाजा लगाएं। सोशल मीडिया ने किस लेवल की नेगेटिविटी भर दी है हमारी जनरेशन के अंदर। इसको अगर अभी हमने कंट्रोल नहीं किया ना तो इट विल बी अ डिजास्टर, इट विल बी अ बिग डिजास्टर। ये कोई हैं माशाल्लाह, इन्होंने पीटीआई का झंडा लगाया हुआ है। अनस जट, बिल्कुल सही किया अनस जट, आपने भी बिल्कुल सही किया। रुबैया अजीज, कमेंट्स पढ़ के दिल खुश हो गया, जीते रहो सब। आप भी जीती रहे माशाल्लाह। आरिफ खान साहब, हेड्स ऑफ टू दैट लेडी, यार कोई उसका इंटरव्यू करवाओ, वाह सर, अकड़ निकाल दी। निशा, औरत के साथ फिजिकल इन्वॉल्व था। निशा, वीडियो तो मुझे सेंड कर दें उसकी, मैं भी देखूं। एमन खालिद कह रही हैं जी, बेस्ट न्यूज आई हियर्ड ऑफ हिज एब्डक्शन। वेल डन एमन, जबरदस्त यार। अब ये कोई नीचे हैं उसामा, बल्कि उसामा क्या यार, उसामा तुम तो उज़मा ही हो, उज़मा ही कहूंगा मैं तो उसको। हे गुड साउंड। ये देखा आपने व्यूवर्स, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, जब आप एक नेगेटिविटी फैलाते हैं माशरे के अंदर तो उसका क्या नुकसान होता है। ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है। मैं, ये लोग, हम सब लोग अंडर 30s में हैं। वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, वी आर द इंजन्स। मैं समझता हूँ कि वी आर द इंजन्स ऑफ दिस कंट्री। अगर हम लोग ही खराब हो गए ना तो फिर ये कंट्री, ये मुल्क, ये रन ही नहीं कर पाएगा। एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट ने पिछले दिनों, जो कि एक फायरवॉल इंस्टॉल की है सोशल मीडिया को फिल्टर करने के लिए। वो फायरवॉल ये होती है कि जो भी नेगेटिव कंटेंट होगा किसी इदारे के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, वो फायरवॉल उस कंटेंट को ब्रेक कर देगी। और सिर्फ ब्रेक ही नहीं करेगी, उसकी इन्वेस्टिगेट करेगी ये कंटेंट कहाँ से जनरेट हुआ, किसके अकाउंट से जनरेट हुआ, किस आईपी से जनरेट हुआ, किसने जनरेट किया। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जिस इदारे ने या जिस इंडिविजुअल ने वो जनरेट किया उसके खिलाफ बहुत पावरफुल किस्म की सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जितनी भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, इससे किसका नुकसान है? हमारी स्टेट का नुकसान है, हमारी जनरेशन का नुकसान है। अब अगर यही चीज़ को हम पॉजिटिव सोचें कि नहीं यार, वो अगर 4 बजे उसके पास गया है तो किसी काम से गया होगा, किसी प्रोटेक्शन के काम के हवाले से गया होगा। अगर वो दिन के टाइम कहीं ट्रैवल नहीं करता तो उसको कोई बीमारी है, वो बीमार है शख्स, डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ है। हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे कि यार ही इज़ राइट, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको बिला वजह पकड़ा गया, उसको डिफेम करने के लिए पकड़ा गया, क्योंकि वो बहुत एक ख़ास एक तबका है जिनके खिलाफ वो बोलते हैं। और अगर वो बोलते हैं तो उस तबके में उन्हें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स नज़र आए हैं तो वो बोलते हैं। फेमिनिज्म के वो सख्त खिलाफ हैं, लड़कियों की बोल्ड ड्रेसिंग के वो सख्त खिलाफ हैं। तो लड़कियों का बोल्ड ड्रेसिंग करना या फेमिनिज्म के नाम पे कुछ गलत बातें करना, क्या ये सही चीज़ है? अब हो सकता है कि मैं ये बातें कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ नेगेटिव कमेंटिंग होगी, बट मैं खलीलुर रहमान साहब की साइड नहीं ले रहा, मैं इस बयानिए की साइड ले रहा हूँ कि ये बयानिया जो उनका था, ये बयानिया ठीक था मेरी नज़र में, और उनके साथ ये ज्यादती हुई है। इस सारे सिनेरियो में सबसे पावरफुल चीज़ ये थी द एक्सेलेंस ऑफ पंजाब पुलिस। क्या बात है यार, मैं कहता हूँ ऐसा लगा कि जैसे कि थोड़ी देर के लिए हमारी आर्मी ने एक्शन किया। तो इस लेवल की उन्होंने एक्सेलेंसी दिखाई है, ब्रिलियंस, क्या ब्रिलियंस है, क्या मेंटेलिटी है। 2 दिन के अंदर उन्होंने 17 में से 13 या 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 3 अभी भी जो हैं वो मफरूर हैं, जिनमें से एक मरकजी मुलजिम अभी भी गायब है, वो कोई मोटा सा था। पंजाब पुलिस के लिए थम्स अप माय फ्रेंड्स, नेगेटिविटी को प्रमोट ना करें। कोई नेगेटिव न्यूज़ आपको मिलती भी है तो कोशिश करें कि यार उसके अंदर पॉजिटिव एंगल क्या है, उसका पॉजिटिव एंगल दिखाएं, पॉजिटिव चीज़ दिखाएं। अभी कल ही मैंने एक व्लॉग किया अज़मा बुखारी साहिबा पे। मैंने ये नहीं देखा कि वो किस पार्टी की हैं, क्या मेरी उस पार्टी से दुश्मनी है, क्या मेरी उस पार्टी से दोस्ती है, मैंने ये नहीं देखा। मैंने ये देखा कि उनके साथ क्या किया गया। और मैं ये भी कह सकता था कि यार ये तो बहुत ही गलत खातून है, इन्होंने ये कैसे हरकत की। तो क्या ये कहना बेहतर था मेरा, या मैं ये कहता कि यार इनके साथ ज्यादती हुई है, ये गलत हुआ है, ये जैसी भी खातून है वो उनका ज़ाती अमल है, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। कोशिश करें कि हर चीज़ में से पॉजिटिविटी निकाल के लोगों तक पहुंचाएं। लोगों, ये जो जहन होता है ना, दिमाग, इंसान का दिमाग, सबसे ताकतवर चीज़ ये दिमाग होता है। आपका दिमाग पॉजिटिव है ना, आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। आपका दिमाग नेगेटिव है, आप पूरी कायनात को तबाह कर देंगे। ये इंसान की जो जिस्म में ताकत है ना, ये मैटर नहीं करती, जो दिमाग की ताकत है ये सबसे बड़ी ताकत है। नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी लेके आएँ। यही नेशनल सेंट्रल न्यूज़ का मोटो है, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान। हमने नेगेटिविटी दिखा के इस खूबसूरत मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमने इदारों को नेगेटिव दिखाया, हमने इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, जुडिशरी, सर हर चीज़ की नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाए। ठीक है,
ہر جگہ پہ کچھ برے لوگ ہوتے ہیں لیکن برے لوگ کو کچھ ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا پیپل آر گڈ. ان برے لوگوں کے اثر کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سبھی برے ہیں. فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کے اندر ڈفرینٹ آفیسز ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک آفس ہے جو کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو ہم ایز اے پبلک پتہ کیا کریں گے, ہم اس ایک آفس کو اس پوری بلڈنگ پہ جنرلائز کر دیں گے کہ یار یہ تو پوری بلڈنگ ہی خراب ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, صرف ایک جگہ خراب ہوتی ہے, پورا ادارہ یا پوری ٹیم خراب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہم اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ گند ہی نظر آتا ہے, اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں کہ ہم گند ہی سننا چاہتے ہیں. تو میں اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں, میرا ادارہ اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہے. اس میں آپ کا بھی مجھے ساتھ چاہیے, اور آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بی پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو دکھائیں. جب تک آپ پازیٹیو سوچیں گے نہیں, آپ پازیٹیو دکھا ہی نہیں سکتے. اللہ حافظ.